of testing. Okay, so basically what is the role of testing and what is the role of characterization techniques in our field in metallurgy and materials, and the interdisciplinary fields, for example in manufacturing and mechanical engineering, design, industrial engineering, and many other departments and fields are available which are related with our field of the characterization techniques. कि बेसिकली करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के थ्रू हम किस तरह से क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं, इनका रोल क्या है मल्टीपल फील्ड्स में, तो वो हम लोग जो है वो इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, सो एट द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी at research and development stage, material properties must be comprehensively characterized. Okay, so if you don't have any idea about the properties of the material, you will be unable to use these materials. For example, you cannot use plastic as a uh, conductive material in any type of electronic circuit because it is a type of insulator material. और अगर आपको कहीं पर जो है किसी क्रैंक शाफ्ट में आप ceramic material यूज नहीं कर सकते because it requires much ductility and elasticity, and there is strength required in the material, but ceramic is much harder and it is brittle in nature, so we cannot use ceramic. In the second point हम कहाँ पर बात कर रहे थे, डिटेल स्पेसिफिकेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू पोटेंशियल कस्टमाइज. ठीक है, सो इन फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में मटेरियल प्रॉपर्टीज मस्ट बी नोन. तो उसकी अगर करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हमें पता नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल वी डोंट नो अबाउट द मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देन वी कैन नॉट यूज और वी कैन नॉट मेक स्पेसिफाइड यूज फॉर दीज मटेरियल्स. हमें पता है कि प्लास्टिक कहाँ यूज़ करना है, वी नो दैट मेटल वेयर वी कैन यूज़ द मेटल, so we must know the properties of the material. So detailed specification must be presented to your client. For example, you have customers and clients, so you must know what is the chemical percentages of your material, what is the tensile strength of your material, and what is the requirement for that material, where you can use this material. You cannot use the mild steel in bridge construction, but you can use these mild steel pipelines in the oil and gas. Okay, you must know about the specification, that is why it will be useful for multiple applications. तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस होंगी और कहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. हाँ, the acceptance of delivered goods involving checking against specification with standard test. So standard tests are required with standard geometry and design and sampling of the materials through which we can determine the properties of the material. For example, you know that what is the specimen of the shape of the specimen of tensile testing. So there is dog bone. Then what is the notch type of the specimen which is used for the impact testing. So these are some standards for the test samples, and there are some specifications are given for each material. ठीक है, सो एट प्रोडक्शन स्टेट इट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई मटेरियल प्रोड्यूस कर लिया और आफ्टर दैट यू विल मेक द करेक्टराइजेशन एंड द क्वालिटी टेस्टिंग फॉर द मटेरियल. उससे पहले, बिफोर द सैम्पलिंग एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल, यू मस्ट नो द प्रोसीजर्स ऑफ क्रिएटिंग मटेरियल्स और प्रोड्यूसिंग दीज मटेरियल्स. क्योंकि प्रोडक्शन के दरमियान ही हम जो है इसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. किसी की मटेरियल की प्रोडक्शन को उसकी प्रोडक्शन स्टेज में ही उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है. दैट इज व्हाई इट मस्ट बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. एंड ऑन रिसेप्शन ऑफ कंप्लेंट्स, एनालिसिस ऑफ सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट. फॉर एग्जांपल, you have received that the material you have provided has lower in tensile strength, so you must improve the tensile strength. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे. आफ्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज properties, you will again supply the material to your client or your customers or your industry. आप किसी को भी अगर देना चाहते हैं तो वो आप देंगे, लेकिन आफ्टर इम्प्रूवमेंट. एंड यू मस्ट नो दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए. एंड for this purpose we also use the characterization techniques. Settlement of disputes call for carrying out of the accepted test. तो इसमें जहाँ
पर भी अगर आपको फॉर एग्जांपल समवन से दैट दिस मटेरियल हैज लोअर मैकेनिकल टेस्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सो यू विल से हिम दैट आप इसको दोबारा जो है वो रिपीट करवाएंगे, उन टेस्टिंग्स को, उन करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को आप दोबारा रिपीट करवाएंगे। तो रिपीट कराने के बाद जितने स्टैंडर्ड्स हैं, यू विल प्रोवाइड दीज इनटू द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, सो दे विल गेट दिस रिपोर्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर देयर इन द मटेरियल। तो ये जो रिपोर्टिंग्स जितनी भी होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो हम उसके थ्रू डिस्प्यूट कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं कि दिस मटेरियल इज बेसिकली द हार्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग और अदर प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। तो उसको हम किसके ज़रिए, किसके थ्रू जो है वो विटनेस करते हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और द करेक्टराइजेशन टेक्निक, है कि हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है इसमें सीखेंगे। तो फर्स्ट इज main aim of this or the major aim of this course is to develop an elementary understanding of some basic techniques on the analysis and testing of materials. It means that what type of testings are required from the traditional level to advanced level. तो एडवांस लेवल तक हम जो है वो कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, कौन सी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो है कौन सी सिंपल टेस्टिंग्स फॉर एग्जांपल नॉन डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव में आ जाती हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। देयर इज़ मैक्रोस्कोपिंग एंड माइक्रोस्कोप, बेसिकली दिस इज आल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ करेक्टराइजेशन टेक्निक, ठीक है। इसकी भी क्लासिफिकेशन गिवन है कि एक मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, फॉर एग्जांपल यू आर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग, इट इज़ बेसिकली अ मैक्रोस्कोपिक टेस्टिंग। बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और यू आर गोइंग टू द टनल माइक्रोस्कोपी, इस तरह की आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करें, सो दीज आर बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक करेक्टराइजेशन टेक्निक्स। सो यू कैन डिवाइड these टेक्निक्स बाय मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो इन दोनों कैटेगरीज को हमने क्या करना है, कवर अप करना है इस कंप्लीट कोर्स में, जिसमें हमें बेसिक आइडियाज सारे हो जाएं कि ये यूज़ किस तरह से होते हैं और किन मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं, ये सारा हमें आइडिया होना चाहिए। And what is the objective? So aim and objective are most important for this course. So what type of objectives you will cover up in this course? A major objective of present course is therefore to provide basic understanding of material characterization. वही है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करेक्टराइजेशन टेक्निक की, सो दैट रीडर कैन कैरी आउट इंडिपेंडेंट रिसर्च यूजिंग दीज करेक्टराइजेशन टेक्निक। सो इफ फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं इंडिविजुअली, यू आर परफॉर्मिंग अ रिसर्च इन अ लैब, so you must know that what type of characterization technique will be used, and you must know about the performance of these characterization technique. आप उसको परफॉर्म भी कर सकें प्रॉपर तरीके से, और उनकी जो डेटा आपको मिल रहा है उसको भी एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है जिसको मैंने काम करवाया था, तो वो साइक्लिक वोल्टामीट्री पे पोटेंशियल स्टेट पे काम करता है। सो दे आर नाउ इंडिपेंडेंट। इफ आई विल प्रोवाइड देम अ सैंपल, दे विल वर्क देमसेल्फ and they will extract the result, and they will interpret the result, and I will just get the final report of these testings, ठीक है। तो मैं जो उसकी रिपोर्ट रिसीव करूंगा उसको स्टडी करूंगा अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, आई विल मेक दैट प्रॉपर्टीज दे हैव अचीव्ड इन देयर प्रोजेक्ट। तो उसमें इंडिविजुअल रिसर्चर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करेक्टराइजेशन टेक्निक। मतलब आप लोगों में से भी अगर स्टूडेंट हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, तो इंडिविजुअली इस पे काम कर सकें, किसी और चीज़ की किसी और बंदे की या मैन पावर की उनको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव? दिस इज द एम्फेसाइज ऑन एप्लीकेशंस, that where you are going to use the application. So if you have the strong applications, it means that your research will be objectivable. आपकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, आपको उसको प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्चुएटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है कि दिस इज द स्मार्ट मटेरियल, दिस इज द टाइप ऑफ प्लास्टिक स्मार्ट मटेरियल। ये प्लास्टिक का एक स्मार्ट मटेरियल का टाइप होता है जिसपे जिससे लाइट इंटेंसिटी या हीट पड़ती है तो ये अपना शेप चेंज कर सकता है। सो फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किए हैं कि ये किस तरह से होंगे।
first of all is the basic understanding of material characterization techniques, and then second one is the emphasis on application, that which type of applications are required for the for different materials. ठीक है. And the second one is what is the understanding of principle used in different material characterization techniques. Required knowledge of different disciplines including physics, chemistry, mathematics, electronics and computer. अरे इस पॉइंट देखिए मतलब क्या है, इसका ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस वर्किंग प्रिंसिपल की बेसिस पे. जी जी हेलो. ठीक है. तो इसमें जो है हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली हम जो मटेरियल किस फेस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो और इक्विपमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. ठीक है. मिसाल के तौर पर एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग एन एग्जांपल इन द लिक्विड फॉर्म. दिस इज द सैंपल ऑफ ब्लड का सैंपल आप वहाँ पे उठा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू चेक दिस ब्लड सैंपल इन दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आप उसके फेजेस को देखना चाहते हैं, या आप उसके जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल हैं या रेड ब्लड सेल है, तो उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिकली. और आपने क्या किया है कि हाई प्रेशर वैल्यूज पर आप लेकर गए हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मशीन में. तो हाई वैक्यूम पे आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो दिस लिक्विड विल बी इवेपोरेटेड, और वहाँ से वो स्किप होकर आपके जो वैक्यूम पंप्स वगैरह होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, उसमें क्या हो सकता है, जैम हो सकते हैं. ठीक है. इट मीन दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोस्कोप की वो आपको नहीं है. इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट मटेरियल्स को जो है वो इनकम्पेटेबल जो मटेरियल है वो आप उसको लेके जा रहे हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जो है SEM पे आप लेके जा रहे हैं. सो इसका मतलब ये है कि आपको मेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रिंसिपल्स की, कि ये वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से करते हैं, उसमें सैंपल्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री किस तरह से यूज़ हो रही है. ऐसा ना हो कि हमारे सैंपल्स डैमेज हो जाएं, या आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई डैमेज आ जाए. तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, एंड दिस इज़ दी आल्सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स. तो जो है इसका एक्सपेक्टेड क्या है कि आफ्टर कोर्स के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ जो है इसमें सीखेंगे. ये सारी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि व्हाट आर टेक्निक्स यू यूज़ व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम. अगर आप कहीं पर मटेरियल में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसमें आपने जो है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट टेक्निक्स, एक्यूरेसी लिमिटेशंस वगैरह की हैं. बी एबल टू डू सम सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. ठीक है. तो हमारे पास जो फाइनल अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसको इंटरप्रेट कर किस तरह से करेंगे, एंड हाउ यू विल मैनिपुलेट द डेटा एंड हाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मुलेशंस ऑन दिस डेटा. ठीक है. तो अब डायरेक्टली CSV डेटा है आपके पास, डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली दीज पॉइंट्स एंड डेटा पॉइंट्स इन योर रिजल्ट्स. तो उसको जो है हम ग्राफ्स वगैरह में चेंज करते हैं और स्टैटिस्टिक्स उनकी एक बनाते हैं, फार्मूलेशन से अप्लाई करते हैं, यूजुअली मेड ऑन दी MS एक्सेल. और अगर कोई और भी चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है तो उसको हम ऐड करके फाइनल स्टेज में लाकर जब उसकी रिपोर्ट एक आ जाएगी तो उसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें पूरे कोर्स में कवर करेंगे.